free. And I also know, see, when somebody says that, sir, we a lot of competition is there, and I don't understand what kind of competition we talk about. People don't like, very few people maintain the consistency, and very few people are able to converse and learn the things and give their full attempt. Seriously, I'm saying that I have seen very less people, very few people maintaining the consistency. Very less, like very less. Like I have seen a lot of times, most of the time I see people do the work. They do the work when they want to do. It is not called consistency, and they think that doing the things means doing with the perfection. There is nothing called perfection. Someday, like one day we do our best, one day we do better, sometimes we do bad. But the thing is that the definition of consistency is we just keep going, keep doing. Now what we get to see, we see that sometimes we give the effort, sometimes we learn the things, but sometimes we don't learn the things. Why? Because we don't feel like learning. And that's where we break the consistency. And seriously, in any field, talking about any field, like any like professional, any private sector, any government, a person who is preparing for government exam, a person who is preparing for any sport or anything, very like maintaining the consistency with the same hunger is very less in people. You may can say, like you can say that, sir, I'm very consistent person, I'm very disciplined person, but the put the discipline with your hungerness, and always ask question, always ask yourself a question: am I improving or not? Am I doing well or not? Always ask one question, that whatever you are doing is improving or not. If the answer is no, believe me, you are just passing the time, and it is just your comfort zone. If you are doing something, and if it is not improving you for your future, for your upcoming future, and not giving you the result, or not teaching you something, believe me, we are just wasting the time, and you are just the same thing happens. So, but still, we have got some people who are. And one more thing, you guys have trusted, you guys have believed in me, you guys have paid the fee, and you guys have taken the classes. Believe me one thing, I'm not making a fluke. I'm not trying to like make a fake image. It is honest me. However, I have taught in previous two classes, believe me, the same way I'm gonna teach it. It's not like that. You may think, sometimes students think that in the demo they provide good demo and they don't, but after that they only need money, they only care for money, and they don't teach. Believe me, it is not gonna happen from my side, because I like to do good work. I like to do work in a good way. It will not happen, believe me. And you have believed, therefore you have paid the fee. You will be taught everything. You will be getting guidance, mentorship. You can ask anything. We will ask you, we'll make you converse, we'll make you correct. Remember, it's really important for you to push yourself from your side. Result, we can't get the things whatever you are looking for. You cannot get only buying, watching. You need to take the attempt. And what kind of attempts we are talking about? First of all, you need to remove the shyness. If you are the person who feels shy every time, if you are someone who feels shy, that, sir, no, sir, this one activity, no, please be open, be extrovert, and try to be a little outspoken. When you speak, when you be open, when you speak openly, you get ideas, and then you start speaking. Now activities will be there, and I will be asking you to do different activities. And what kind of activities we are talking about? Activities activities where you will need to like do the like you will need to record yourself. You'll need to do the practice and send the video in the group. So it may happen that we will ask you that, sir, presentation is there, GD is there, and you need to give your ideas and speak in front of the camera and record the video and send to the group. And you may think, okay,
You forgot something? Okay, bye bye. So it may happen. You will think, yeah, sir, what kind of activities you are asking me to do? You are asking me to record the video in front of the camera, but no, no, sir. I don't want to record the video. I don't want to speak in front of the camera. Come on, yaar, come on. Things don't work like that. I'm showing you the video. I'm showing you the activities. That it's not something new. It is not something that only we are making you do. These things happen, and that's how. I'm not forcing, but I'm saying it will be better. You will improve a lot. See, I'm also speaking in front of the camera. I'm also recording the video and speaking. So what will happen? Just what I'm doing, I'm just recording myself. I'm just trying to improve myself. So let me show you. Let me show a video. Okay. That how do we make students do the activity? Yes, sir. Bye bye. Okay. I'm showing you how do we make students do the activity. Wait. Okay, and this is the video and I'm sharing the screen. है ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्टिविटी कैसे होती है, आप घर से बैठे बैठे किस तरीके की एक्टिविटी कर सकते हैं. आई होप यू कैन सी दिस स्क्रीन. है ना, देयर इज अ स्क्रीन. है ना. है ना. The voice will be less, maybe like you may be not able to listen clearly, but that's what, this is how I like making people do the activity. This is how I like motivating others to do the work. इफ यू फील शाय, रिमेंबर, देखो भाई, अगर शर्माने के कोई फायदे हैं ना, तो आप शर्माओ जितना शर्माना चाहते हैं आप लोग. अगर शर्माने के या के बहुत फायदे हैं तो कम ऑन यार, डोंट. अरे आई हैव एडेड हिम और ग्रुप. ओके. सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. ओके. सो व्हाट आई वाज सेइंग ओके. तो मैं कह रहा था कि अगर शर्माने के कोई फायदे हैं, कि आपको जैसे एक्टिविटी करने में आंसर आपको बोले कि नहीं नहीं सर, ये क्वेश्चन नहीं नहीं सर, ये टॉपिक पे कन्वर्स नहीं करेंगे. आप शर्माने के कोई फायदे हैं तो शर्मा लो, लेकिन कोई फायदे नहीं बता दूं मैं. कोई फायदे नहीं है. और हम जितने भी टास्क करेंगे, पहले मैं आपको वो एक्टिविटीज करके दिखाऊंगा. रिमेंबर, अगर बहुत ज्यादा अच्छे से इंप्रूव करना चाहते हैं, इफ यू रियली वांट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, आप सच में चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छा हो, चार लोगों से अलग बोलें आप, तो आपको सीखना होगा ये चीजें, और चीजें बदल चुकी हैं. आपको कैमरे के सामने बोलने की आदत होनी चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है ना. आप इंग्लिश में बात करना सीखें. छोटी छोटी एक्टिविटीज होंगी जहां आपको प्रेजेंटेशन देना होगा, आपको कैमरे के सामने प्रेजेंटेशन देना होगा, अपनी आइडियाज को शो. ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं जहां हम स्टूडेंट्स को स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि प्लीज कम ऑन भाई. है ना. आप ये मत सोचो कि भाई क्या हो गया, भाई वीडियो प्रेजेंटेशन आपने बना दी, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ. आप सीख रहे प्रेजेंटेशन. ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, इंग्लिश की वीडियो डालते हैं या इंप्रूवमेंट की बनाते हैं, डालते हैं. सो प्लीज, रिक्वेस्ट है, आप लोग शर्माना मत. अभी नहीं, एक्टिविटी थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगी. आफ्टर आफ्टर अ वीक में भी, कुछ वीक्स के बाद आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी. लेकिन प्लीज शर्माना मत. अच्छे से अपना बेस्ट देना, एक्टिविटीज करना. रिमेंबर, ये एक्टिविटीज आपको लाइक बहुत अच्छा इंप्रूव करवाएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा करने में और सीखने में. आप लोग क्लास इसीलिए ले रहे हो क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है, नर्वसनेस है, कहीं कहीं गलतियां हो जाती हैं, और उसको इंप्रूव करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा. ओके. अब हम बढ़ते हैं आगे. अब बढ़ते हैं आगे. ओके. नाउ आई एम शेयरिंग द स्लाइड. फिर से एक हल्का सा रिवीजन, बहुत ही हल्का सा रिवीजन करवा दूंगा, है ना, 5 मिनट में. 5 मिनट में मैं आपको सारी स्लाइड्स एक बार दिखा दूं कि मैंने आपको क्या क्या बताया है. ध्यान से आप देखते रहें. आई एम शेयरिंग द स्लाइड. ओके. दिस इज अ स्लाइड. ओके. नाउ इन लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड इन 5 मिनट्स. लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कि हमने पढ़ा क्या है. दो क्लास हो गई हैं, ये है तीसरी क्लास, और आज हमारा स्टार्ट हो जाएगा रूल.
फिर से वो बच्चे को ले आते हैं, ये है वो बच्चा जिसके बारे में अपन ने बात की, है ना। मैंने कहा इंग्लिश पहली लैंग्वेज जो हम सीखते हैं, हमने स्कूल में पास किया है, हमने स्कूल पास किया है, इंग्लिश पढ़ा एंड पास हो गए, अच्छे मार्क्स आए। फिर भी आगे चल के पता चला कि इंग्लिश आई नहीं रही, बोल नहीं पा रहे, लेकिन पास हुए हैं, सब आपके अच्छे अच्छे नंबर्स आए हैं, हम 12th में सब पास हुआ हम लोग। ओके। एंड 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 दूसरा, हमने रेशियो की बात की कि क्या मायने है रेशियो के, क्या मायने रखते हैं, आपका स्पोकन इंग्लिश, आपका कॉन्फिडेंस कितने ज़्यादा मायने रखता है, और आपके जो मार्क्स जितने आते हैं उसको कितने कम मांगने हैं, ये बात की हमने। हमने बात की कि नॉलेज और स्किल में क्या डिफरेंस होता है। आपका आपका चीज़ों को पता होना कि सर मुझे तो ये आता है, मुझे तो आता है, मैंने तो ये पढ़ा है। तो इस नॉलेज होना और स्किल स्किल होना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपको पता है क्रिकेट क्या होता है, लेकिन पता होने से आप क्रिकेटर नहीं बन जाएंगे। बात की हमने। हमने बात की काफ़ी बार बच्चे इंप्रूव करते रहते हैं, इंग्लिश सीखते रहते हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं होता है। और इंप्रूवमेंट नहीं होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ों को गलत प्रोसेस से सीखते हैं। अपने अपनी चीज, जो भी चीज़ें वो सीखते हैं उसको पढ़ते नहीं है, ध्यान नहीं देते। तो जरूरी है कि अटेंशन पे किया जाए, जज किया जाए, सीक्वेंस में चीज़ों को सीखा जाए। 3 समय होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। आपको तीनों समय में बात करना सीखना है, अच्छे से, एकदम अच्छे से, बिना गलती के बात होनी चाहिए, एक्यूरेसी आनी चाहिए चीज़ें। अगर चीज़ें सीखने के बाद आप गलती करते हैं तो भाई क्या ही सीखा आपने। चीज़ें नहीं सीखा है तो अलग बात है ना। चीज़ें नहीं सीखा, चीज़ें नहीं सीखा तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आपने चीज़ें सीख ली, आपके आपके पास रूल्स का नॉलेज है, तो गलती नहीं हो। तो तीनों समय में बात करना आना चाहिए। दो तरीके से बात होता है, हमें क्वेश्चन करना सीखना है, वी नीड टू लर्न हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव द आंसर। आंसर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वी हैव टॉक्ड अबाउट थ्री थ्री कैरेक्टर्स, हमने 3 कैरेक्टर्स के बारे में बात की है। डूअर मीन्स द पर्सन और द थिंग वी टॉक अबाउट। डूअर कैन बी एनी वन, वट एवर आई कैन टॉक अबाउट, हु एवर आई कैन टॉक अबाउट विल बी डूअर, इट कैन बी एनी वन। Speaker is a person who tells you about the doer. So if I am telling you about my friend, so my friend is doer and I am a speaker. The person who tells you about doer is a speaker. Then we have listener, the one whom we are talking to. Suppose I am telling you about Sumit. I am telling you Sumit is my friend, he speaks English, he learns English, he learns how to communicate well. I am talking about Sumit. Sumit is doer, I am a speaker, and I am telling you, you are listener. This is what we have conversed. We have conversed that we need to have a command over 4 formats. You must have a command. You need to learn how the things are different, how the situations are different, how in different situation you need to speak. In 4 formats we have discussed first format. In first format, doer does the work himself. मैं खाना बना रहा हूँ, डुअर खुद से काम करता है। इन सेकेंड फॉर्मेट, डुअर डजंट वर्क हिमसेल्फ, डुअर गेट्स इट डन। डुअर खुद से काम नहीं करता, काम किसी और को करवाता है, तो दूसरा सिचुएशन। तीसरा सिचुएशन विदाउट डूअर, जहां डूअर नहीं होता, हम बताते हैं कि किस काम को किया जा रहा है, डूअर नहीं है, ना ही कोई कर रहा है, ना ही करवा रहा है, बस किस काम को किया जा रहा है। चाय बन रही है, खाना बन रहा है, घर की सफाई हो रही, काम पूरा किया जा रहा है। फोर्थ फॉर्मेट, कोई काम नहीं, जस्ट इंफॉर्मेशन, डूअर कौन है, कैसा है, कहाँ है, बस बात खत्म। इसके अलावा 2 तरीके के वर्ड होते हैं, एक्शन वर्ड और नो एक्शन। नो एक्शन, आपको नहीं बताना, यू डोंट नीड टू टेल मी दैट सर, you don't need to tell me that what is noun pronoun, I don't want to know, I just want to know what is action, what is no action. If you are saying a word is action, a word is action, which means they can change their forms, go, went, gone, going, eat, ate, eaten, eating. And something is no action, it means it doesn't change its form, and you cannot use ing, it's called no action. Apart from that, we talked yesterday that if you want to answer in Hindi, अगर हिंदी में आप कुछ कहते हैं, तो एक बात को बताने के कई तरीके हैं, लेकिन आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। आप कितना ट्रांसलेट करेंगे। हर भाषा में, इंग्लिश के अलावा जितनी भी भाषाएं हैं, एक बात को बताने के कई तरीके होंगे। इंग्लिश में नहीं होता। इंग्लिश में आपको सीक्वेंस फॉलो करना होता है। आंसर का सीक्वेंस है डूअर, टाइमर, एक्शन। ओके। हाँ यही था। ओके, ये मैंने दूसरी साइड लिया है ना। आंसर का सीक्वेंस होता है आपके पास डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन। और डूअर हमने बात कर ली। हमने बात की कि टाइम वर्ड जो होता है, हमने बात की कि यहां से आ गई हमारी क्लास। ओके। जिन है ना, जिनको जिनको अगर ऐसा लगा कि सर आपने तो बहुत तेज समझा दिया, ये मैंने कल पढ़ा दिया है, इसकी 2 रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो आप देख लेना। अब हमारी क्लास स्टार्ट होती है अभी से, आज का। ओके। तो आंसर का फॉर्मेट होता है डूअर,
टाइम वर्ड एक्शन। आंसर का फॉर्मेट होता है डूअर टाइम वर्ड एक्शन, है ना। डूअर टाइम वर्ड एक्शन, डूअर टाइम वर्ड एक्शन, है ना। इस सीक्वेंस में आपको आंसर को कहना है, तो आपकी कही गई बात सही होगी, है ना। इफ यू गिव द आंसर इन दिस वन सीक्वेंस, द आंसर विल बी करेक्ट। डूअर के बारे में हमें पता है, डूअर कोई भी हो सकता है सर। जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं, और जो पर्सन के बारे में बात करते हैं वो होता है डूअर। टाइम वर्ड के बारे में हमने बात किया है। टाइम वर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन द सेंटेंस। इसको ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, आपको जो मन वो कह दो। इसको इंग्लिश में ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हम यहाँ पे टाइम वर्ड कहेंगे इसको। हेल्पिंग वर्ब या टाइम वर्ड के बहुत मायने हैं। सारा आपका आपका कहा गया बात सही है गलत डिपेंड करता है टाइम वर्ड पे, है ना। कल के टेस्ट में भी, कल जो टेस्ट हुआ था मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए थे, उसमें से आप बहुत सारे सेंटेंसेस में से आप टाइम वर्ड नहीं निकाल पाए। और जिन सेंटेंस में से आप टाइम वर्ड नहीं निकाल पाए, इसका मतलब कि आपने वो रटा हुआ था। बिकॉज अगर अगर आपको पता ही नहीं है टाइम वर्ड क्या है, तो आप मीनिंग कैसे बता रहे हो उसका, है ना। टाइम वर्ड हैज टू बी देयर। Time word is the most important word in the sentence. Time word tells you the time, that what time you are talking about, as well as status of the work. और फिर है एक्शन। नाउ पहला रूल है हमारा इंग्लिश का, अभी का इस क्लास का पहला रूल। इस रूल को दुनिया वाले और आपने सुना होगा कहते हुए, प्रेजेंट इंडिफिनिट। ऐसा मैं नहीं कहूंगा, मैं आपको अपनी तरीके से समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा वो समझा दूं जो आपने सुना होगा, या प्रेजेंट सिंपल, है ना। मैं आपको इस तरीके से नहीं सिखाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है, डोंट वरी। मैं आपको अच्छी अपनी तरीके से सिखाऊंगा, लेकिन आप अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपको क्या पता होगा। आपको हो सकता है आपने सुना होगा इंग्लिश में एक इंग्लिश में एक रूल सीखा होगा जिसको आपने कहा होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट सिंपल। अब अगर हम इसकी देखो, इसका मीनिंग क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का क्या मीनिंग है, मतलब कि प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, और इंडेफिनिट मीन्स ऐसी बातें जो फिक्स ना हो। मतलब ये रूल, जो ग्रामर में रूल बनाया गया है, वो रूल कह रहा है कि वर्तमान की ऐसी बातें जो फिक्स ना हो, जो कि इनडेफिनिट है ना, जो कि फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है ना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ग्रामर का जो रूल है मैं वही बता रहा हूं ना। लेकिन आपने देखा होगा इस रूल ने कहा, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल है, इस रूल का मीनिंग है कि वर्तमान की ऐसी बातें जो फिक्स नहीं है, जो अनिश्चित है। और वहीं आपने सीखा होगा कि टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि भाई, है ना, टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, मैं काम करता हूं, हैबिट डेली रूटीन, है ना। ठीक है। आपको आपने पढ़ा होगा कि टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि सर आई एक्शन की, है ना, कि आई एक्शन की फर्स्ट फॉर्म मैं काम करता हूं, हैबिट डेली। अब एक बात बताओ भाई, जिस तरीके से हमने बात की, आप में से जितने लोगों ने प्रेजेंट इस तरीके से पढ़ा है कि सर आई एक्शन की फर्स्ट फॉर्म मैं काम करता हूं, तो मेरे आप सभी के लिए क्वेश्चन है। आप में से जितने लोग मानते हैं कि सर आई एक्शन की फर्स्ट फॉर्म मैं काम करता हूं, ये होता है, हाँ भाई चलो सही है, बहुत बढ़िया, सही है। अब मुझे ये बताओ कि एक इंग्लिश में जो एक सेंटेंस बनता है, वो सेंटेंस कॉम्बिनेशन होता है डूअर टाइम वर्ड एक्शन का, जिसे ग्रामर में आप कह सकते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, है ना। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कहो या डूअर टाइम वर्ड एक्शन, तो ये होता है डूअर टाइम वर्ड एक्शन। तो यहां पे पहला क्वेश्चन है मेरा कि आपने कहा कि सर आई एक्शन की फर्स्ट फॉर्म मैं काम करता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश में, मैं गाना गाता हूं, आई सिंग, है ना, मैं नाचता हूं, आई डांस, है ना, मैं सफाई करता हूं, आई क्लीन। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है कि मुझे तीन चीज चाहिए, मुझे डूअर चाहिए, मुझे टाइम वर्ड चाहिए, मुझे एक्शन चाहिए। आपने कहा कि सर आई टीच, आपने कहा कि सर मेरे को पढ़ाया गया है आई टीच, मतलब मैं पढ़ाता हूं। लेकिन सर मुझे ये बताओ कि इसमें टाइम वर्ड क्या है, और आपके टाइम वर्ड ने क्या कहा। आपके हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, मैं बच्चों के हिसाब से,
बच्चों के हिसाब से है ना, आपके हिसाब से आप कहेंगे मुझे, आप मुझे कह रहे हो कि सर आई टीच इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, और वाक्य के अंत में ता है ती है आ गया तो हैबिट हो गई सर, और मैं काम को डेली करता हूँ सर। आपने मुझसे कहा कि अगर आप किसी काम को डेली करते हो, आपको लग रहा है कि जिस वाक्य के अंत में ता है ती है आ जाए वो काम आप डेली करते हो और वो हैबिट हो गई। वाह, वाह, ये आपने कहा है ना, इस तरीके से, इस तरीके से कुछ पढ़ाया जाता है। तो इसका तो ये मतलब हो गया। आई टीच है ना, आपने कहा कि सर आई टीच मतलब कि मैं ये काम डेली करता हूं और ये मेरी आदत है। तो इसका तो यही मतलब हो गया कि सर आई एंजॉय, है ना, है ना, आई एंजॉय होली, मतलब कि सर मैं डेली होली एंजॉय करता हूं, ये आपने यही कह दिया। आई एंजॉय होली, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, है ना। आपने कहा कि सर प्रेजेंट सिंपल मीन्स, प्रेजेंट सिंपल में आई एक्शन की फर्स्ट फॉर्म मैं काम करता हूँ, ये मेरी हैबिट होती है, ये डेली रूटीन होता है, डेली लाइफ में होता है। अच्छा, तो आई इंजॉय होली मतलब मैं, सर मैं होली इंजॉय करता हूँ, मैं डेली होली इंजॉय करता हूँ, सो के उठ के रंग से खेल लेता हूँ। सर आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, मैं डेली सेलिब्रेट, है ना, डेली रूटीन, आपने डेली वर्क, आपने यही कहा। अरे भाई, अब आप रूल के नाम पे आ जाओ, ये रूल ने क्या कहा, है ना, रूल, रूल, इस रूल का नाम है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट इस रूल का नाम है। और प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित बातें, मतलब रूल का नाम है वर्तमान की अनिश्चित बातें। ये रूल आपको कह रहा है कि वर्तमान की अनिश्चित बातें, और आपने उसको ट्रांसलेट करके बोल दिया कि सर हैबिट है और डेली करता हूं। वाह, तो ऐसा नहीं होता है ना, इट्स नॉट लाइक दैट। अब नाउ, है ना, अब मैं क्वेश्चन करता हूं, अब मैं क्वेश्चन करता हूं, नाउ टेल मी, आपको सिर्फ इंग्लिश में जवाब देना है, हिंदी में कोई जवाब नहीं देगा। क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है मेरा कि आई, है ना, क्वेश्चन है मेरा, आई टॉक, नहीं, आई स्पीक इंग्लिश। क्वेश्चन है मेरा कि आई स्पीक इंग्लिश का क्या मतलब है, लेकिन मुझे कोई हिंदी में आंसर नहीं देगा, मुझे इंग्लिश में जानना है कि इसका क्या मीनिंग है। आई स्पीक इंग्लिश, क्या मीनिंग है इसका, चलिए कौन बताना चाहता है। आई स्पीक इंग्लिश, हिंदी में नहीं, मुझे इंग्लिश में ही सुनना है। आई ओनली वॉन्ट टू नो दैट हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस थिंग्स, हाउ विल यू लेट मी नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई स्पीक इंग्लिश। जिसको भी लगे कि वो बता सकता है कि वो माइक ओपन करेंगे और मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई स्पीक इंग्लिश इन इंग्लिश। Sir, I talk English. मैम, बट मैम द सेम थिंग यू आर सेइंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई टॉक इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता हूँ। No, but you can't tell me in Hindi. No, no, you can't. You are telling me in Hindi. It means you are translating. You are trying to translate. I'm not asking. Suppose we are I in speak America. English every day or daily basis. No, ma'am, it's not like that. Can you Daily. repeat your question? I have not mentioned. I have not mentioned that I do it daily or not. मैंने तो mention ही नहीं किया daily करता मैंने। और ना ही रूल कहता है, देखो रूल का जो नाम है प्रेजेंट, रूल ने भी तो आपने, रूल भी आपको नहीं कह रहा है कि आप डेली करते हैं, रूल का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो रूल का भी मीनिंग ये नहीं कि आप डेली करते हैं। नाउ लेट मी टेल यू, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आई स्पीक इंग्लिश मतलब कि मैं इंग्लिश बोलता हूं, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन, मैं इंग्लिश बोलता हूं, है ना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। और है ना, यू कैन नॉट से दैट सर आई हैव अंडरस्टूड द थिंग्स इन रियली गुड वे, I have understood and I can converse. If you are translating, if apart from translation you are not able to make me understand that what's the meaning of the sentence, then you have not studied the thing in a good way. आप कंसीडर करो कि भाई मैं अमेरिका में रहता हूं, यू जस्ट कंसीडर आई लिव इन अमेरिका एंड आई डोंट नो हाउ टू स्पीक हिंदी, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक हिंदी, आई लिव इन अमेरिका, नाउ हाउ विल आई टीच दिस रूल, how will you make me understand what is the meaning of the sentence? You cannot tell me, you cannot tell me that sir I speak English means मैं English बोलता हूँ, I don't know Hindi man, I don't know what to say, like what is the Hindi language, I don't know, है ना, that's the thing। और अब आप समझोगे कि यार सर अब हम क्या बोलें, है ना, that's the। तो अब मैं आपको इस रूल को अपनी तरीके से समझा दूं, ये पूरा ट्रांसलेशन है, आपको जिसने भी पढ़ा है ट्रांसलेशन करवाया है, सीधी बात है, सच सच बात है।
सच बात है। ओके, नाउ पहली बात, पहली बात है ना कि अगर आप कुछ भी सेंटेंस कहेंगे, आप कुछ भी कहेंगे, कोई भी सेंटेंस बनेगा, मुझे मतलब आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भाई डूअर क्या है, टाइमर क्या है, एक्शन क्या है। ट्रांसलेट करके आप थोड़ा बहुत सीख लोगे लेकिन बहुत अच्छा नहीं सीख पाओगे, है ना। आपको तीन चीज चाहिए, मेरे को तीन चीज चाहिए भाई। आप आंसर देंगे डूअर टाइमर एक्शन चाहिए। तो पहली चीज, इसमें टाइमर नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है ये मुझे नहीं पता, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ है टाइमर, ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज, है ना, फर्स्ट थिंग, है ना, लूप होल, है ना, फर्स्ट। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट, सेकेंड थिंग इज दैट इसका आखिर मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। देखो, आई स्पीक इंग्लिश का ये मीनिंग नहीं है कि मैं डेली इंग्लिश बोलता हूं, ये मेरी हैबिट है। नहीं 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 भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं बोला डेली वेली। वो तो आपको, वो तो भाई यहाँ पे इंसान को ऐसा लगा, आपको लगा कि वाक्य के अंत में ता है आ रहा है, मैं इंग्लिश बोलता हूं, तो आपको लग रहा है कि नहीं नहीं डेली बोलता हूं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये रूल ये नहीं कहता। रूल आप, है ना, आप देखो रूल, रूल खुद, रूल कुछ और कह रहा है। रूल कह रहा है कि काम, रूल कह रहा है कि वर्तमान की ऐसी बातें जो निश्चित नहीं है, ये कह रहा है रूल। तो अभी तक अगर आपने इस तरीके से पढ़ा है, तो मैं थोड़ा अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है ना। आपने इस तरीके से पढ़ा है, इसीलिए आप में से लगभग सभी ने, जब मैंने ऐसे सेंटेंसेस दिए थे, आई स्पीक इंग्लिश, सर चेक्स द नोटबुक, सर ब्रशेज द टीथ, ही ब्रशेज द टीथ, इसीलिए इस रूल में आप लोग टाइमर नहीं निकाल पाते। देखो, ये रूल स्पोकन इंग्लिश में बोला जाने वाला सबसे ज्यादा रूल है। ये रूल वही रूल है जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। ये रूल वही रूल है जिसमें बच्चों के कमांड नहीं आते, सारी मिस्टेक्स होती हैं। अब नाउ, मैं अब हम पढ़ते हैं इस रूल को हमारे हिसाब से, मैं पास में बैठ के जैसे चेयर लगा के बैठ जाए, इधर बैठ जाओ। है ना। अब इसको, इस रूल को पढ़ते हैं। ऑनलाइन है ना। अब इस रूल को पढ़ते हैं नाउ, लेट्स ओके। तो इस रूल को, जो रूल हम अभी, जिसे दुनिया वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल कहते हैं, इस रूल को हम लोग यहां नाम देने वाले हैं पार्ट ऑफ लाइफ। इसको हम यहां नाम देंगे, वन सेकेंड, कम ऑन, ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। तो आपकी क्लास का, हमारे बैच का पहला रूल है हमारा पार्ट ऑफ लाइफ। पहला रूल है हमारा पार्ट ऑफ लाइफ। पार्ट ऑफ लाइफ मीन्स मतलब जिंदगी का हिस्सा। पार्ट ऑफ लाइफ में जिंदगी का हिस्सा। तो ये पहले रूल, इस रूल में हम बताएंगे कि कोई भी काम आपकी जिंदगी में शामिल है या नहीं। In this rule, we will learn how to give the answer, how to tell people, how to inform people that the work is in your life or not. आपको, देखो, जो भी आपको आता है, आपको इस तरीके से आना चाहिए कि आप हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी भाषा है बात कर सकें। सो पार्ट ऑफ लाइफ इज रूल, पहला रूल। पार्ट ऑफ लाइफ रूल ये नहीं कहता कि आप काम डेली करते हैं, दिन में 10 बार करते हैं, महीने में 4 बार, ये नहीं नहीं कुछ नहीं। ये रूल कहता है काम आप आपकी जिंदगी में है बस, करते हैं आप, हमें नहीं पता कितनी बार करते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं पता है हमें काम की, कि आप कितनी बार, बस आपकी जिंदगी में बस। अब पार्ट ऑफ लाइफ में टाइम है ना, हर रूल में आपके पास टाइम वर्ड होते हैं। जैसा मैंने कहा कि टाइम वर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन द सेंटेंस। टाइम वर्ड के, अगर आपको टाइम वर्ड नहीं पता तो आप मीनिंग नहीं बता सकते, हर बार आपको टाइम वर्ड। तो पार्ट ऑफ लाइफ में हमारे पास टाइम वर्ड होते हैं डू एंड डस। पार्ट ऑफ लाइफ में हमारे पास टाइम वर्ड होते हैं डू एंड डस। डू एंड डस, हमारे पास टाइम वर्ड होते हैं डू एंड डस पार्ट ऑफ लाइफ में। ओके, ये टाइम वर्ड है। एक जो डू होता है वो काम भी होता है, एक्शन भी होता है, काम, लेकिन ये वो डू नहीं है, ये टाइम वर्ड है। एक डू होता है, डू मीन्स करना, डू, डिड, डन, डूइंग, ये वो नहीं है, ये है टाइम वर्ड। इंग्लिश में आप अपनी भाषा है ना, ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब, है ना। आराम से समझना जो भी समझा रहा हूँ। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इन द सेंटेंस। सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है पार्ट ऑफ लाइफ, लोगों से बोलता नहीं है। आप देख लेना, डू डस सही टाइम पे एस और यस, डस वस नहीं बोलता है। आराम से समझो, कोई भी क्वेश्चन होगा, वन बाय वन क्वेश्चन को ना सबको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, है ना।
इस रूल का ये मीनिंग नहीं है कि आप काम को डेली करते हैं, ये ती से मत पढ़ना। आ, आप इस रूल का बस मीनिंग है कि काम आपके जीवन में है। वर्क इज इन योर लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। हम लोग को क्या देखो, हिंदी हम लोग को आती है, हम लोग हिंदी हिंदी के थोड़े से सपोर्ट से इंग्लिश सीख सकते हैं, ये चलता है, ये गलत नहीं है। लेकिन हम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश करते हैं, ये गलत है, ये है ना। तो थोड़ा समझने के लिए ट्रांसलेशन इट्स ओके, बट डूइंग टू मच इट्स नॉट ओके। अब नाउ मुझे अपने, है ना, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, मुझे अपने बारे में बात करनी है। मुझे बताना है कि किसी भी काम को करना मेरी जिंदगी में है या नहीं, मतलब मैं काम को करता हूं या नहीं करता। कोई भी काम को करना मेरी जिंदगी में है या नहीं, मुझे ये बताना है। अब भाई आंसर देना है आपको, कुछ कहना है, डूअर टाइमर एक्शन। तो पहले चाहिए डूअर, डूअर हूं मैं, बस पहला वर्ड, पहला वर्ड। मैं अपने बारे में, मैंने कहा कि मैं अपने बारे में आंसर दे रहा हूं कि मैंने कहा कि इंग्लिश पढ़ाना मेरी जिंदगी में शामिल है। सो डूअर, डूअर है आई। देन अब मुझे बोलना है कि जिंदगी में शामिल, तो पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ की बात करनी है। और काम है टीच, है ना, आई, जिंदगी की पार्ट ऑफ लाइफ, टीच इंग्लिश, आई पार्ट ऑफ लाइफ टीच, ये कहना है मुझे, है ना। आपको है ना, अलग अलग पार्ट ऑफ लाइफ, वर्क इज गोइंग ऑन, वर्क इज कंप्लीट, अदर अदर रूल्स आर देयर, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं। पहला रूल है पार्ट ऑफ लाइफ, तो मुझे ये कहना है। अब भाई पार्ट ऑफ लाइफ के अंदर जो टाइमर है, मुझे वो टाइमर चाहिए, तो आई, है ना, आई टाइमर के तौर पे मैं, मेरे पास दो ऑप्शन है, डू या डज, और आई के साथ यूज करते हैं डू, आई डू टीच इंग्लिश। ये ये हमारा बना है एक सेंटेंस। आई है डूअर, डू है टाइम वर्ड, और टीच है एक्शन। डूअर टाइमर एक्शन के बाद जो भी आएगा उसके बारे में हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे कि उसे क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं। अभी हमारा मेन टारगेट है डूअर टाइमर एक्शन बस। आई है डूअर, डू है टाइम वर्ड, एंड टीच है एक्शन। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि इंग्लिश पढ़ाना मेरी जिंदगी में है, टीचिंग इंग्लिश इज पार्ट ऑफ माई लाइफ, है ना। इसका मीनिंग है। अब मैं आपको, अगर किसी भी सेंटेंस का मीनिंग जानना है, इफ यू वांट टू नो द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, अगर किसी भी सेंटेंस का मीनिंग जानना है, तो आप टाइम वर्ड देखेंगे कि टाइम वर्ड क्या है, वो टाइम वर्ड मीनिंग बताएगा। आपको लगता है भाई, आपको लगता है कि सर, आपको लगता है सर आई टीच इंग्लिश, आपको लगता है भाई कि सर आई टीच इंग्लिश, तो टीच इंग्लिश का मीनिंग है मैं पढ़ाता हूँ। अरे भाई कम ऑन, कोई भी काम, कोई भी काम, मॉस्किटो इज देयर, सॉरी कोई भी कोई भी काम, कोई भी एक्शन आपको कैसे मीनिंग दे सकता है? मैंने बताया था ना आईएनजी। आपको तो लगता आता है कि भाई गोइंग, आपको लगता है कि भाई गोइंग, सर गोइंग में जा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होता, गोइंग में जा रहा हूं, टाइम वर्ड चाहिए, टाइम वर्ड। आपको आपको लगता है कि सर टीच, टीच फर्स्ट में पढ़ाता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों समय में आ सकता है, काम है, आप तीनों समय में कर सकते हैं। आप बोलते हो सर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में काम करता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ने कुछ नहीं बताया आपको। एक्शन है ना, देयर इज अ टाइम वर्ड, एक टाइम वर्ड है जो छुपा हुआ है, अपन बात करेंगे कि क्यों छुपा हुआ है, क्या है ना, देयर इज अ टाइम वर्ड। सो तो मैंने कहा डूअर है आई, टाइम वर्ड डू, एंड एक्शन, टाइम वर्ड डूअर एक्शन, डूअर टाइम वर्ड एक्शन। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मेरी जिंदगी में शामिल है, आई डू टीच इंग्लिश, है ना, आई डू टीच इंग्लिश। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं, देखो इतनी बात से, जब मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, इतनी बात से आपको ये नहीं पता कि मैं डेली पढ़ाता हूं। मैंने आपको ये नहीं बताया कि सर मैं डेली पढ़ाता हूं। आई डू टीच इंग्लिश का मीनिंग ये नहीं है कि मैं डेली पढ़ाता हूं, या मैं हफ्ते में 4 दिन पढ़ाता हूं, या मैं हफ्ते में 5। मैंने फ्रीक्वेंसी नहीं बताई। फ्रीक्वेंसी बताने के लिए हमारे पास वर्ड्स होते हैं, जैसे समटाइम्स, रेगुलरली, डेली, एंड हार्डली एवर, एवरी डे। ये फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड्स होते हैं, और जानने के लिए हाउ ऑफन यूज करते हैं। मैंने ये नहीं बताया, मैंने बस बताया कि काम जिंदगी में है। हो सकता है मैं महीने में 2 बार काम करता हूं, हो सकता है हफ्ते में 1 बार, बस कुछ भी हो सकता है, करंट लाइफ में है बस। आई, और ये बताया आपको, ये जो टाइम वर्ड है ना डू, इसने बताया, क्योंकि टाइम वर्ड ही बताएगा भाई, और क्या बताएगा। टीच एक्शन की फर्स्ट फॉर्म टीच इंग्लिश ने कुछ नहीं बताया आपको, वो तो काम है। आपको टाइम वर्ड ने, जो हेल्पिंग वर्ब है, जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, उसने बताया कि काम आपकी जिंदगी में है, आप उस काम को, हाँ समझने के लिए समझना है, आप उस काम को करते हैं, लेकिन डेली करते हैं, ये इसका मीनिंग नहीं।
और ये रूल ही कहता है, मैं अपने से थ्योरी नहीं बना रहा हूँ, ये रूल ही कहता है, रूल ही। आप जाके ट्रांसलेट मान लो, रूल दिख जाएगा आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या, वर्तमान की ऐसी बात है जो फिक्स नहीं है। सो आई डू टीच इंग्लिश। एक और एग्जांपल लेते हैं, कल हम आपको कन्वर्स कराएंगे ये सारी चीजें। एक और एग्जांपल लेते हैं अब। तो आई डू टीच है ना, इंग्लिश पढ़ाना मेरी जिंदगी में है, आई डू टीच। अब एक्शन है, जैसे हाँ, सौरभ सर कह रहे हैं कि सर आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, तो इसमें भी टाइम वर्ड है। सौरभ सर, बिना टाइम वर्ड की कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता है, कोई हो ही नहीं सकता है। अगर आपको कह रहा है कोई कि सर टाइम वर्ड नहीं है, हेल्पिंग वर्ब, बेवकूफ बना रहा है। सौरभ सर है ना, जैसे सौरभ सर ने पूछा कि सर आई सेलिब्रेट, है ना, माई बर्थडे। तो एक चीज आप, है ना, एक चीज आप लिख लिख लो कहीं पे कि बिना, है ना, अगर आप सोच रहे हो कि सर इसमें टाइम वर्ड नहीं है, सर बिना टाइम वर्ड के सेंटेंस नहीं होता है। बिना टाइम वर्ड के कैसे, मैंने बताया था ना, कल बताया था मैंने, मैं खाना सर खा, वन क्वेश्चन, इसमें जो डू है टाइम वर्ड वो हाइड है इसमें, मतलब है ना? हिडन है, हाँ, और मैं आपको रीजन दूंगा कि क्यों हिडन है, काय को हटा रहे हैं, हिडन है, टाइम वर्ड है वहां। ओके। आप खाना खा, भैया बिना टाइम वर्ड के आपका सेंटेंस ऐसा दिखता है जैसे मैंने हिंदी लिखा है, मैं खाना खा, आप खाना खा, वो खाना खा, एकदम अधूरा। अगर आपको लग रहा है कि सर, आपको लग रहा है कि आई सेलिब्रेट, है ना, अगर आपको लगता है ना, अगर आपको लगता है कि सर बिना टाइम वर्ड के सेंटेंस होते हैं, तो सर बिना टाइम वर्ड के क्योंकि यार टाइम वर्ड ही तो मीनिंग बताएगा ना, मुझे मीनिंग बताएगा किस समय की बात हो रही है। अगर आपने बिना टाइम वर्ड की कोई सेंटेंस कहा, तो आपका सेंटेंस ऐसा है, मैं खाना खा, आप खाना खा, वो अधूरा सेंटेंस है, अधूरा। और आपको ये पता होना चाहिए। आपको पता, मैं आपको एक दो शीट दिखाऊंगा, शीट्स इतनी लेंदी लेंदी शीट्स हैं, अभी मैं एक शेयर करूंगा क्लास के एंड तक, मैं आपको शीट्स दिखाऊंगा। आपके होश उड़ जाएंगे कि जितना आसानी से हम कन्वर्स करें, इतना आसानी से इंप्लीमेंट होता नहीं है। ठीक है, तो टाइम वर्ड समझना बहुत जरूरी है। ओके, आई डू। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, अब मुझे कहना है, तो है ना, एक्शन है, एक्शन है, ब्रश द टीथ। अब मुझे बताना है कि ब्रश करने का काम मेरी जिंदगी में है, और मैं ब्रश करता हूं, है ना, मुझे बताना है, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट ब्रशिंग द टीथ इज पार्ट ऑफ माई लाइफ। आई वॉन्ट टू, देखो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा सकता हूँ, हिंदी तो जस्ट थोड़ा सा करवाना रहता है, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर वीक, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल। I am very comfortable. I can make you understand all these rules in English. There is no problem for me. है ना, I can make you understand all of the rules, whatever rules you are saying, whatever rules you take it out. Talking about is, are, was, were, have, has, do, does, whatever rule is there, believe me, I can make you understand the rules. I can teach the rules in English in a really good way, with the simple words, not with the lengthy words. है ना, so it's not the problem for me that I'm just taking the help of Hindi. i'm not somebody I'm not somebody who is not able to speak. I'm not somebody who is speaking Hindi because of compulsion. It's not my compulsion, come on। है ना, आप लोग ऐसा मत समझना कि स्पीकिंग हिंदी इज माई कंपल्शन, नो इट्स नॉट माई कंपल्शन, मेरी मजबूरी नहीं है। वो तो आई एम जस्ट, है ना, फॉर द पीपल आई। आप कॉन्वर्सेशन लेना, जिस दिन मैं आपको कन्वर्स कराऊंगा ना, यू विल सी दैट हाउ डू वी स्पीक विदाउट हिंदी, क्योंकि हिंदी बंद हो जाएगी आपकी कुछ दिनों बाद, कन्वर्सेशन में हम हिंदी नहीं सुनेंगे। ओके, ब्रश द टीथ, ये तो मैंने काफी बार देखा है कि टीचर्स भी ये नहीं बताते, टीचर्स भी यही बोलते हैं कि आई ब्रश द टीथ, मैं ब्रश करता हूँ, बट दे आर नॉट एबल टू टेल यू दैट व्हाट्स द मीनिंग इन इंग्लिश। सिंपल सा थिंग है। अगर कोई कहते हैं कि बस यही मीनिंग है, मैं ब्रश करता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, आई ब्रश द टीथ, आई ब्रश द टीथ, तो फिर से वही सिनेरियो क्रिएट करो। You are in other country, you are in America, a teacher is teaching you, you are students and you are asking, sir, what is the meaning of I brush the teeth? How can I say मैं brush करता हूँ, अरे I don't know, I am in America, there has to be something, and this is a way, this is how I will tell you, I will tell that, listen, there is a helping verb, there is a time word, and this is the word tells you the meaning of the sentence, that's what I'm gonna say। तो ब्रश करना मेरी जिंदगी में है, डूअर चाहिए भाई, आंसर देंगे डूअर चाहिए, डूअर आ गया। आपको पार्ट ऑफ लाइफ की बात करनी है, तो डू लिख दिया आपने, आई के साथ डू आता है, और डू डस के साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, आई डू ब्रश द टीथ, है ना, आई डू ब्रश द टीथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, मैं ब्रश करता हूं, मेरी जिंदगी में है, ब्रश करना मेरी जिंदगी में है, आई डू ब्रश द टीथ, डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन।
डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन। देयर इज डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन। तीन चीजें। मैं आपको तीन चीजें के बेसिस पे ही सिखाऊंगा आपको एक्यूरेसी के लिए। आई डू ब्रश द टीथ, है ना, ब्रश करना। द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज ब्रशिंग द टीथ इज पार्ट ऑफ माई लाइफ। ब्रश करना मेरी जिंदगी में है। ब्रशिंग द टीथ इज पार्ट ऑफ माई लाइफ। आई डू ब्रश द टीथ। ओके, नाउ वन बाय वन मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। आई विल आस्क द क्वेश्चन वन बाय वन। एंड हम अब आप मुझे बताओ कि क्या ब्रश करना आपकी जिंदगी में है, रितेश सर? इज ब्रशिंग द टीथ पार्ट ऑफ योर लाइफ? सर योर वॉइस इज ब्रोकन। माई वॉइस इज ब्रेकिंग अप, है ना, मेरी आवाज कट रही है तो बोले माई वॉइस इज ब्रेकिंग अप। ओके, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, सो रितेश सर बताइए, ब्रश करना आपकी जिंदगी में है, इज ब्रशिंग द टीथ पार्ट ऑफ योर लाइफ? आई ब्रशिंग द टीथ इज माई पार्ट ऑफ लाइफ। है ना, है ना, डू डस से कहना है, इस फॉर्मेट में कहना है। अगर अगर ब्रश करना आपकी जिंदगी में है तो आप कहेंगे आई डू ब्रश द टीथ। आई डू ब्रश द टीथ, बोलिए। आई डू ब्रश द टीथ। है ना, आई है डूअर, डू है टाइमर, ब्रश। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आई ब्रश द टीथ बोलते हैं, भाई सब बोलते हैं, सब बुलवाएंगे आपसे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए सिखा रहे हैं। सूरज सर, आ, सूरज सर, व्हाट अबाउट यू? Yes, sir. बताइए, ब्रश करना आपकी जिंदगी में है? Yes, sir. हाउ विल यू आंसर मी? I do brush the teeth. बढ़िया, है ना। अभी आप सभी लोग लॉन्ग फॉर्मेट से ही आंसर देना, हम आपको सब बुलवाएंगे भाई, है ना, आराम से। अभी आप लोग लॉन्ग फॉर्मेट में आंसर देना, आपको डुअर टाइमर एक्शन ला के देना है, डुअर टाइमर एक्शन। ओके, पूजा मैम, व्हाट अबाउट यू? इज ब्रशिंग द टीथ पार्ट ऑफ योर लाइफ? Yes, I do brush the teeth. ओके, एंड देन वी हैव, लेट मी थोड़ा नाम देख लो सबका। सौरभ सर, ब्रश करना आपकी जिंदगी में है? I do brush the teeth, sir. It's a part of my life. नाइस। डॉली मैम? Hello. यस सर, आई अंडरस्टूड, आई हर्ड यू। Yes, sir. I do brush the teeth. ओके, डॉली मैम, ब्रश करना आपकी जिंदगी में है क्या? चलिए, एंड I think वासिफ? हाँ, आई थिंक शी इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ। वासिफ सर, वासिफ सर, ब्रश करना आपकी जिंदगी में है क्या? I do brush the teeth. बढ़िया। प्रीति मैम, ब्रश करना आपकी जिंदगी में है क्या? Yeah, I do brush the teeth. मुस्कान मैम, ब्रश करना आपकी जिंदगी में है क्या? Yes, sir, I do brush the teeth. It's my Okay. part of life. पार्ट ऑफ माई लाइफ। बढ़िया, आई थिंक एवरीबॉडी इज गिवन द आंसर। ओके, सो दैट्स द थिंग। चलिए अब मैं कुछ, तो आप सभी ने कहा आई डू ब्रश द टीथ, इसका मीनिंग है कि हाँ आपकी जिंदगी में है काम। देखो, आई डू ब्रश द टीथ से आपने ये नहीं बताया कि आप दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, आप दिन में एक बार ब्रश करते हैं, आप महीने में कितने, मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं पता, आदत वादत नहीं बताया आपने। आपने बस ये बताया कि आपकी जिंदगी में है, ये काम करना शामिल है, करंट लाइफ में है आपके। चलो अब मैं एक एक्शन देता हूँ। एक्शन है आपका गो टू जिम। ओके, ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी जिंदगी में है या नहीं। रितेश सर, एक्शन है गो टू जिम, क्या जिम जाना आपकी लाइफ में शामिल है? आई डू गो टू जिम। सूरज सर? पार्ट ऑफ माई लाइफ। I do go to gym. ओके, सौरभ सर? I do go to gym, sir. ओके, एंड असलम सर? आई थिंक असलम सर इज देयर। Go to gym. ओके, डॉली मैम? Yes, sir, I do go to gym. मुस्कान मैम? No, sir, I don't go to gym. ओके, पूजा मैम? No, sir, I don't go to gym. बढ़िया, एंड
वासिफ सर, I do go to gym, sir. प्रीति मैम। No, sir, I don't go to gym. बढ़िया है ना, है ना, बढ़िया है ना, अच्छा है ना। धीरे धीरे देखना, मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट चीजें समझाई जाएंगी, कन्वर्स कराई जाएंगी, एकदम आराम से ही चलने देना। चलो एक्शन है, ठीक है। ये हम लोग पता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आंसर दे रहे हैं। अगर आप कोई इंग्लिश मूवीज या इंग्लिश न्यूज देखोगे, इंग्लिश में न्यूज देखोगे, तो आप देखना, ये ऐसा नहीं है कि यूज नहीं होता, बंद हो गया पुरानी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो इंडिया में यूज नहीं करते ज्यादा। आप इंग्लिश मूवीज या वेब सीरीज देखोगे तो देखना, वो नॉर्मली कहते हैं, सिंपल वे में कहते हैं, आई डू ईट, आई डू ईट फूड। पर क्वेश्चन से कन्वर्स करते समय इसका यूज करें तो ऐसा कोई इशू तो नहीं हाँ होता ना? नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है सर, कोई इशू, कोई प्रूव ही नहीं कर पाएगा। अगर आपको कोई कह रहा है ना नहीं ऐसा यूज नहीं कर सकते, उसको खुद नहीं पता है। स्टूडेंट्स ने ट्रांसलेट मार के रखा है, सबने सबने कोई ट्रांसलेशन वाला आपसे कहेगा कि आई, पता है वो कहेगा आई, बोलेगा कि आई गो टू जिम ही होता है, आई डू गो नहीं होता। आप पूछो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं होता है भाई, क्यों नहीं होता, टेल मी क्यों नहीं होता, क्या क्या गलत लगा है, टाइम वर्ड है। आप जब निगेटिव आप जब निगेटिव कहते हो कि, तो आप डोंट कहते हो ना, डोंट, आई डोंट। हाँ, तो राइट। क्यों लगा आप डू नॉट क्यों बोल रहे हो, आप बोलो आई नॉट गो टू जिम। आप आई नॉट गो टू जिम क्यों बोलते हो। अगर आपको कोई सर, कहता है कि, है ना, आपको अगर आपको कोई कहता है कि सर आई गो टू जिम ही होता है, आई डू गो नहीं होता, तो भाई ये बता तू निगेटिव आंसर में आई डू नॉट क्यों बोल रहा है, आई नॉट बोलो। हम्म, क्योंकि पता है रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि निगेटिव में आंसर में जो नॉट है वो टाइम वर्ड के बाद ही आना चाहिए, नहीं अदरवाइज गलत हो जाएगा। ओके। है ना, इंग्लिश में ग्रामर का रूल कहता है कि जो नॉट है वो टाइम वर्ड को फॉलो, वो हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करेगा। बिना हेल्पिंग वर्ब के बिना हेल्पिंग वर्ब के नोट नहीं आता, इसलिए आप लगा देते हो। भाई तो हेल्पिंग वर्ब तो है ना। और हाँ। जब आपने कहा आई डू नॉट गो टू जिम, इसी के पॉजिटिव आंसर में आप ये भी तो कह सकते हो, आई डू गो टू जिम, क्या दिक्कत है इसमें, क्या हम्म। दिक्कत यस। है ना। देयर इज नो प्रॉब्लम, सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, डू टाइम वर्ड एक्शन। प्रॉब्लम ये क्रिएट तब करेंगे जब जब हम आपको कोई सा टॉपिक देंगे कन्वर्स करने के लिए, और हम बोलेंगे कि इस पे पॉइंट्स बनाने हैं, और जब आप पढ़ने जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि यार इसमें, आप समझोगे इसका मीनिंग क्या है। आई यू में तो कोई गलती नहीं करता है, हम मुश्किलें और गलतियां तो थर्ड वर्ड सिंगुलर और प्लूरल डुअर में होंगी। तो कोई गलत नहीं है, कोई बहस नहीं कर रहा है, कोई बहस कर रहा है तो आप बोलना प्रूफ करें ना प्रूफ, और ऐसा, और कोई बहस कर रहा है, आप आर्ग्यूमेंट जीत नहीं पा रहे तो आप हमारा नंबर दे दें, हम बात कर लेंगे। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। वो बुक बुक उठा के किसी ने पढ़ा नहीं है, गूगल पे अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके ग्रामर के बारे में किसी ने पढ़ा नहीं है, अलग अलग टीचर नेटिव स्पीकर से किसी ने पढ़ा नहीं है। नेटिव स्पीकर से कोई पढ़ता नहीं है। जैसे हमारे इंडिया में कोई भी ता है ती है करवा देता है, उससे पढ़ लेते हैं और मान लेते हैं कि हाँ हाँ भाई ऐसे ही होता है, ऐसा ऐसा थोड़ी होता है। मैं तो देखो पर्सनली, मैं क्योंकि क्योंकि जब आप अच्छे लेवल पे काम करते हैं, जैसे मैं भी अब थोड़ा सा लाइक क्लासेस लेने लगा हूँ, ऑनलाइन एक्टिव हो गया हूँ, तो आप ऐसा मत समझिए कि मैं जस्ट पढ़ा रहा हूँ तो जस्ट मेरे माइंड में कहीं से रटा वटा पढ़ा दिया। पढ़ाने से पहले 10 जगह से भाई मैं तो सर्च कर लेता हूँ कि अगर मेरी कही गई बातें बातें लॉजिकल है या नहीं, अगर नहीं होती तो मैं नहीं कहता, क्योंकि क्योंकि आज आज मैं आपको कुछ रटवा दूंगा, आज मैं आपको कुछ भी ऐसा कुछ भी बोल दूंगा कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि कल को जाके आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं होता। तो भाई आई एम वेरी लॉजिकल पर्सन, आई गो टोटली प्रैक्टिकली, और मैं कुछ पढ़ाऊंगा तो मैंने 10 जगह से अच्छे से छानबीन करके, या फिर अब बुक्स में से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं जो नॉलेज अच्छा ग्रामर सिखाती है, वहां से उठा के पढ़ा है। अगर अगर कोई स्टूडेंट अगर आप में से कोई कोई स्टूडेंट मुझे कहता है, या कोई भी ऑफलाइन मुझे कहता है कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो, तो मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं कहूंगा आप मुझे प्रूव करिए। इंग्लिश जहां से बनी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड है ना, ऑक्सफोर्ड से बनी है, या कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ये जो मेन होती हैं यहाँ से बनी है। आप इन दोनों में से किसी एक में मुझे ये साबित करो कि ये गलत है, ये जो मैंने कहा है गलत है, मैं मान जाऊंगा मैं गलत है, नहीं कर पाओगे, ऐसा है ही नहीं। यू गो एंड सर्च इट। सर ये तो सही है सर, लेकिन अभी न्यू टाइम में सर ये डू का हाइड कर दिया गया है, ये इसलिए लोग किसने, वो सर ये शॉर्टकट किसने अपना। कहा, ये आपने किस आर्टिकल में किस डेटा ने कहा कि हाइड कर दिया गया है प्रूफ, है ना, ये आपने कहाँ पढ़ा प्लीज बताइए। स्पोकन में हम पढ़े नहीं है सर, स्पोकन में लोग डू को यूज ही नहीं कर रहा है। हाँ, तो ये आपकी इसका चॉइस है, मतलब मत करो। है ना, डुअल देखो, देखो एक्शन हाँ, फर्स्ट फॉर्म। हाँ देखो मैं समझ रहा हूँ आपके,
ये सही है, गलत नहीं है। आई गो टू जिम हमने कब कहा है गलत है? हमने कब कहा ये गलत नहीं है? Yes. लेकिन आई डू गो टू जिम ये भी गलत नहीं है। और आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ एक टाइम वर्ड है, आपको जानना है। आपको हर सेंटेंस का Yes. टाइम वर्ड पता होना चाहिए। आपको हर सेंटेंस में Yes. मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक टाइम वर्ड है, और वो टाइम वर्ड बता रहा है कि आप पार्ट ऑफ लाइफ की बात कर रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है आई गो टू जिम। प्रॉब्लम ये है कि आप मुझे ये नहीं बता पा रहे हो कि इसका मीनिंग क्या है। इसका इस ये सेंटेंस आप मुझे कह रहे हो कि सर मैं जिम जाता हूँ। ये तो सर आप ट्रांसलेट कर रहे हो ना, मेरे को एक्चुअल मैं कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश में बताओ इसका क्या मीनिंग, आप बता ही नहीं पा रहे। है ना? तो है ना, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है जो ऊपर हमने दिया है। आई डू गो गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है ना? डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, तीन चीजें। सेंटेंस बनता है तो तीन चीजें लिखी जाती हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। मैंने भी तो वही लिखा, मैंने क्या गलत किया भाई? कोई भी टीचर, आपने ग्रामर पढ़ी होगी तो कोई भी टीचर क्या बोलता है, सेंटेंस बनता है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये तीन चीजें आती हैं। तो मैंने भी तो वही लिखा, आई है सब्जेक्ट, डू है आपका हेल्पिंग वर्ब, एंड आपका गो था मेन वर्ब। मैंने क्या गलत लिखा? लेकिन आप लोग मान लेते हो, आप लोग एकदम गांठ बांध के रख लेते हो कि भाई नो सर, आई और मेन वर्ब ही चाहिए अपन को। ऐसा नहीं होता, दोनों ही होता है, दोनों ही पता होना चाहिए। चीजों को समझने में आसानी होता है, तो दैट्स अ थिंग। चलो और मैं क्वेश्चन करता हूँ। काम आपकी है ना, और ये आदत भी नहीं है, आप ये भी मत समझना कि ये हैबिट वैबिट की बात नहीं हो रही। हैबिट बताने का अलग रूल हम सिखाएंगे आपको। दिस इज नॉट हैबिट, दिस इज नॉट हैबिट, यू आर नॉट टेलिंग दैट इट इज योर हैबिट और नॉट। है ना? यू आर नॉट टेलिंग इट्स हैबिट। है ना? अब मैं एक एक्शन लेता हूं, चलो अब एक, नाउ आई एम टेकिंग वन एक्शन। अब हमारा एक्शन है डू द वर्क। देखो, आज आप मुझे लॉन्ग फॉर्मेट में आंसर देंगे, आज आप मुझे लॉन्ग फॉर्मेट में आंसर देंगे और बताएंगे कि सर मैं इस काम को करता हूं, ये मेरी जिंदगी में लॉन्ग फॉर्मेट में। मुझे डूअर चाहिए, है ना? डूअर चाहिए, टाइमर चाहिए, और एक्शन चाहिए। एक्शन है डू द वर्क, एक्शन है डू द वर्क, मीन्स डू द वर्क मीन्स काम को करना। अब अगर 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 आपकी जिंदगी में, है ना, अगर आपकी जिंदगी में काम करना शामिल है ना, अगर डू द शॉपिंग कर लेते हैं ना, काम तो सब करते हैं, शॉपिंग, शॉपिंग करना, ओके। अब आप मुझे एक एक से मैं सबसे पूछूंगा, आप बताओ कि आप लोग शॉपिंग करते हैं या नहीं आपकी जिंदगी में। रिमेंबर, लेकिन कंडीशन ये, मुझे तीन चीजें चाहिए, डूअर, टाइमर, एक्शन। रितेश सर बताइए, शॉपिंग करना आपकी जिंदगी में है क्या? तीन चीजें चाहिए अपन को। आई डू द आई डू द शॉपिंग। ओके, तो रितेश सर का आंसर है आई डू द शॉपिंग। ठीक है। प्रीति मैम, सबका आंसर लिखूंगा मैं यहीं पे। प्रीति मैम, Sir, I'll do the shopping. वंस अगेन प्रीति मैम। Yes, sir, I'll do the shopping. ओके, प्रीति मैम का आंसर भी सही। सूरज सर, शॉपिंग करना मेरी जिंदगी में शामिल है। I do the run. सेम आंसर। I do the, डोली मैम, Yes, I sir. do I do the shopping. सौरभ सर, I do the shopping, or I am confused, sir. I does do the shopping, or I do the shopping. आई के साथ डू का यूज होगा। चलो एक एक आंसर सिंगुलर थोड़ा मत करना। डिफरेंट, एक आंसर थोड़ा डिफरेंट है, आई डू रहा। चलो मैं बाकी सबसे पूछ लूँ फिर मैं आता हूँ। असलम सर, Sir, I do the shopping. ओके, तो आई डू द शॉपिंग ऊपर वाला है आपका। मुस्कान मैम, I does do the shopping. मुस्कान मैम इज नॉट अवेलेबल, यस, इज ऑफलाइन। Yes, sir, same. I do the shopping. ओके, आई डू द शॉपिंग। राजन सर, Yes, sir, I do the shopping. यस मैम, मुस्कान मैम। राजन सर, शॉपिंग करना आपकी जिंदगी में है क्या, कैसे बताएंगे आप? सर सेकंड वाला। सेकेंड वन, बोलिए, बोल के बताओ भाई, मुझे मुझे नहीं दिख रहा सेकेंड वाला। आई डू द शॉपिंग। ओके, वासिफ सर, आई डू द शॉपिंग। ठीक है। तो आप में से, ठीक है, आप में से कुछ लोगों का आंसर रहा आई
डू द शॉपिंग। अब जितने लोगों ने कहा आई डू द शॉपिंग वो मुझे बताएंगे कि इसमें डूअर क्या है। डूअर क्या है इसमें? जितने लोगों ने भी कहा आई डू द शॉपिंग, शॉपिंग करना जिंदगी में, है ना, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करें हम, है ना, डूअर टाइमर एक्शन वाले, तो डूअर क्या है इसमें? आई। I. I I. टाइम वर्ड क्या दिख रहा है इसमें आपको? डू। do Do. एक्शन क्या है? Do. Do. एक्शन। शॉप। Do. Do the shopping. एक्शन कहाँ है? एक्शन नो सर, Do the shopping. द हाइड सर, डू इज Shopping. द हाइड और डू इज द एक्शन। देखो हिडन नहीं, ये हिडन वाला नहीं, मैंने अभी आपको हिडन नहीं पढ़ाया ना, मैंने आपको डूअर टाइमर एक्शन पढ़ाया, तो मुझे तीन चीजें दिखनी चाहिए। हिडन नहीं, मुझे बताइए कहाँ दिख रहा है इसमें आई डू द शॉपिंग में तीन चीजें कहाँ दिख रही? सर इट्स सेकंड वाला ये राइट। क्या करना है? यस सर, चुप सेकंड, से सेकंड वाला है। हम किए सेकंड, हैं तुम एक वहां से कैंसिल कर दो ना। हाँ जी। ये, कौन गुस्सा हो रहा है क्लास में? आई डू द शॉपिंग। है ना। देखो जितने लोग ने कहा आई डू द शॉपिंग, इसमें भाई आप मुझे तीन चीजें तो दिखती हुई नहीं, मुझे तो नहीं दिख रही, क्योंकि ये आई हो गया डूअर, और ये डू है एक, और ये डू, अब ये डू क्या है? अगर आप कहोगे ये डू सर टाइम वर्ड है तो उसके बाद एक्शन होना चाहिए, तो द एक्शन है क्या? नहीं, द एक्शन हो नहीं सकता। अगर आपने कहा कि सर वो डू टाइम वर्ड है, अगर आपने कहा कि सर ये जो डू है ये टाइम वर्ड है, तो भाई उस टाइम वर्ड के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये द टाइम वर्ड है क्या? द टाइम वर्ड हो ही नहीं सकता है, तो नो एक्शन है। शॉपिंग, शॉपिंग भी एक्शन नहीं है। शॉपिंग भी टाइम टाइम वर्ड के जस्ट बाद वाला शब्द एक्शन हो सकता है, शॉपिंग भी, वो भी एक्शन नहीं है ना। तो आप, है ना, तो देखो ये सेंटेंस है, तो आप कहेंगे आई डू द शॉपिंग, आई डू द, तो पहला है डूअर, है ना, डूअर आई, फिर है टाइम वर्ड जो कि डू। है डू, और फिर है एक्शन जो कि है डू। गलत नहीं है? आपको लग रहा होगा सर ये क्या हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा, आपने, ये सही सेंटेंस है। यस इट्स राइट। मैंने जैसे बताया था कि पहला जो वर्ड है हेल्प, जो एक डू तो टाइम, ये पार्ट ऑफ लाइफ, देखो मैं हाईलाइट करता हूँ, पार्ट ऑफ लाइफ, ये हाईलाइट किया मैं नीचे से, है ना। पार्ट ऑफ लाइफ रूल में दो टाइम वर्ड होते हैं, डू होता है, डज होता है, ये टाइम वर्ड है। लेकिन ये डू और डज टाइम, ये डू टाइम वर्ड है, एक एक्शन भी डू होता है करना। अब भाई, अब दो, अगर मैं इस एक टाइम वर्ड और एक एक्शन यूज करता हूं, तो दोनों अपना अपना काम करेंगे, तो एक डू टाइम वर्ड का काम कर रहा है, एक डू एक्शन का काम कर रहा है। गलत नहीं है ये, आप ऐसा मत समझो, गलत गलत नहीं है ये लॉन्ग फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा डूअर टाइम वर्ड एक्शन। आप कह सकते हैं आई डू शॉपिंग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको पता होना चाहिए आई डू द शॉपिंग। और देखो आप जब निगेटिव आंसर बोलते हो, देखो मान लो आप लोग मेरी बातों से एग्री नहीं कर रहे, आप लोग कह रहे हो कि ऐसा होता ही नहीं है, क्या पढ़ा रहे हो। मान लो आप कह रहे हो कि नहीं नहीं सर आई डू द शॉपिंग होता है, तो एक बात बताओ, अब आपको निगेटिव आंसर बनाना है, आपको कहना है कि आप काम नहीं करते आपकी जिंदगी में नहीं, बनाओ इसका निगेटिव आंसर, बनाओ निगेटिव आंसर कि सर मैं शॉपिंग नहीं करती मेरी जिंदगी में नहीं, बनाओ। I I do not don't do the do the shopping. I shopping. don't do the shopping. क्या बोलेंगे? I don't do the I do I not don't do the do shopping. the I डू don't do the शॉपिंग। shopping. लो भाई, दो डू आ गए। अब जिसको मेरे दो डू से प्रॉब्लम है, देखो भाई आपने भी तो दो डू यूज किया, जिसको प्रॉब्लम है कि सर दो डू क्यों आ सकते हैं, दो डू आ ही नहीं सकते, तो देखो ना भाई, आपने भी तो आई डोंट, अब मैं आई नॉट डू द शॉपिंग तो कह नहीं सकता, क्योंकि भाई अकेला आ जाएगा, नॉट अकेला आ नहीं पाता। आप आई नॉट डू द शॉपिंग कह नहीं सकते, तो आ गया ना आप। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट रॉन्ग। एक डू टाइम वर्ड है ना, मेन फॉर्मेट है, एक डू टाइम वर्ड है, और डू जब टाइम वर्ड होता है तो पार्ट ऑफ लाइफ की बात करता है कि काम आपकी जिंदगी में है या नहीं है, काम आपकी जिंदगी। आई डू द शॉपिंग, डू अ टाइम, आप कह सकते हैं आई डू द शॉपिंग, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको पता होना चाहिए लॉन्ग फॉर्मेट, है ना। मैं बता रहा हूं कि ट्रांसलेशन, हमें आपको चीजें इतनी अच्छे से पता होनी चाहिए कि बिना हिंदी बोले आप इंग्लिश में किसी को समझा सके, इतना अच्छे से आना चाहिए, तो बात बने फिर, है ना। आई डोंट, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई, आप लोग पूछ लीजिए क्वेश्चन, बोलिए। इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन दे कैन आस्क इट, है ना, है ना, दैट्स, है ना। मैं बस तीन चीजें लिख रहा हूं, मैंने आज की क्लास में मैंने सिर्फ तीन चीजें लिखी हैं, डूअर टाइमर एक्शन, मैंने और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। हाँ, हमारी क्लास में आज हमने पहला रूल स्टार्ट किया, पार्ट ऑफ लाइफ में जिंदगी का हिस्सा,
है ना, ऐसे काम जो आपकी जिंदगी के हिस्से हैं, काम आप उन काम करते हैं, आपकी जिंदगी के हिस्से हैं। ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। सो जस्ट मैंने बस आपको यही बताया, हम आपको, है ना, दैट्स अ थिंग। गलत नहीं है, कुछ नए नए सेंटेंस होते हैं। देखो जैसे मैंने कहा, आप शॉर्ट फॉर्मेट यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल आपको कन्वर्स कराऊंगा, मैं क्लास की शीट भी शेयर कर दूंगा। है ना, आप शॉर्ट फॉर्मेट भी कह सकते हैं। है ना, आपको कहना है, लेट मी डुप्लीकेट इट। ओके, आपने कहा आई डू द शॉपिंग, कि सर, मैंने आपसे पूछा कि इसका क्या मीनिंग है, आपने बोला सर पार्ट ऑफ लाइफ। आपने कहा कि सर डू टाइम बट पार्ट ऑफ लाइफ। आप कह सकते हैं आई डू द शॉपिंग। है ना, आई डू द शॉपिंग। क्यों कह सकते हैं, इस पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। ओके, थोड़ा नहीं, आप लोग को थोड़ा पता तो रहे। ओके, तो ये था हमारा एकदम लॉन्ग फॉर्मेट डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन। अब देखो, जैसे मैंने लिखा आई एम, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड। अगर मैं यहां से एम रिमूव करता हूं तो क्या बचे, एक्शन की कौन सी फॉर्म बचेगी यहाँ पे, बताइए तो। सर ईटिंग तो रहेगा ना सर यहाँ पे, ईट नहीं होगा रहेगा, यार। क्योंकि एम था इसीलिए ईट, एम ने, एम रहता है, एम आईएनजी लेता है, एम हट गया, आईएनजी भी हट गया, बेस फॉर्म आ गई। यस। हम्म। है ना, अपने एक्शन की कोई भी फॉर्म खुद ब खुद चेंज नहीं होती, वो डिपेंड करती है कि आप कौन सा टाइम वर्ड यूज कर रहे हैं। तो एम के साथ, इजे मार के साथ एक्शन की आईएनजी आती है, इजे। अब एम है तो आईएनजी, एम हटा तो आईएनजी हटा, एक बेस फॉर्म आ गई। आई हैव ईटन। देखो अब हैव, जो हैव रूल है इंग्लिश में, हैव थर्ड फॉर्म लेता है, तो मैंने लो हैव हटा दिया, तो क्या ईट फूड। बचेगा, क्या बचेगा, ईट फूड। एम आई राइट, क्योंकि यस। हैव थर्ड फॉर्म लेता है, हैव हटा थर्ड फॉर्म भी हटा। वॉज भी लेता है एनजी, आई वॉज ईटिंग फूड, लो ईटिंग फूड, लो वॉज भी हटा देता हूँ, आई वॉज, I क्या eat food. फूड। है ना, है ना, इफ यू, टाइम वर्ड इज अ वर्ड विच चेंजेस द एक्शन फॉर्म। है ना, अब आपको धीरे धीरे ये समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा है कि, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ईटिंग, है ना, ईटिंग, ईटिंग लिखा, या मैंने लिखा गोइंग, या मैंने लिखा कमिंग, तो आपको अब ये समझ में आ रहा होगा कि ईटिंग का मीनिंग खा रहा हूं नहीं होता, गोइंग का मीनिंग जा रहा हूं नहीं होता, उसके सामने एक वर्ड चाहिए। है ना, देयर हैज टू बी द टाइम वर्ड, एक टाइम वर्ड आएगा जो बताएगा कि क्या हो रहा है। आई कैन ऑल्सो राइट आई विल बी, दैट्स अ थिंग। अब नाउ आई एम राइटिंग द रूल। अब अपन उस रूल की बात करते हैं जो अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं। है ना, आई एम राइटिंग द रूल विच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ इन द क्लास। ओके, एंड द रूल इज पार्ट ऑफ लाइफ। आई डू sorry, I do eat food. What is the time word in this one sentence? डू। Do time word है, do हटा, क्या बचा, आई ईट Eat. फूड। आई ईट फूड। है ना। देखो जो हमारी मेन इंग्लिश I होती eat है food. ना, जो हमारी इंग्लिश होती है उसमें कुछ रूल बहुत ज्यादा बोले जाते हैं, जिसमें 5 से 6 टाइम वर्ड्स बहुत बोले जाते हैं। इज एम आर, वॉज वर, हैव हैज, डू डस, है ना, डिड, विल, ये बहुत ज्यादा बोले जाते हैं। एक चीज अब नोटिस करो आप, एम एम आईएनजी लेता है, एम हटा आईएनजी हटा, हैव थर्ड फॉर्म लेता है, हैव हटा थर्ड फॉर्म हटा, वॉज आईएनजी लेता है, वॉज हटा थर्ड फॉर्म हटा। लेकिन जो रूल हम सीख रहे हैं, जो डू टाइम वर्ड मैंने लिखा, वो एक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा है। एंड नाउ रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इन इंग्लिश वी हैव वन टाइम वर्ड विच कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेंटेंस। पूरी इंग्लिश में आपके पास एक टाइम वर्ड ऐसा है जो आप चाहो तो उसे हटा के बात कर सकते हो, सिर्फ एक टाइम वर्ड हटता है, सिर्फ एक टाइम वर्ड, वो है डू, और सिर्फ पॉजिटिव आंसर में से हट सकता है। पूरी इंग्लिश में जितने भी आप सेंटेंस, जितने भी टाइम वर्ड्स हैं, जितने भी टाइम वर्ड्स के बारे में आप जानते हैं, जितने भी रूल हैं, उसमें मात्र एक टाइम वर्ड आपके पास फ्रीडम है, एक टाइम वर्ड को हटाने का। अगर आपका मन है तो, जरूरी नहीं है, अगर आपका मन है तो आप चाहो तो एक टाइम वर्ड हट सकता है, उसके पास पावर हटने का, वो है डू। तो आप आई डू ईट फूड बोलो या आई ईट फूड बोलो। अगर अगर मैं मात्र
अगर मैं मात्र आई ईट फूड भी कहता हूं तो ऐसा मत कहना कि सर टाइम वर्ड नहीं है, टाइम वर्ड इज देयर, इट्स हिडन, हिडन टाइम वर्ड है, टाइम वर्ड इज देयर, टाइम वर्ड है ना। अब नाउ अगर नेक्स्ट टाइम मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा ना कि एक बात बताओ, आई आई टीच इंग्लिश, मैं पूछूंगा आपसे कि भाई बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई टीच इंग्लिश एंड इन इंग्लिश, तो आप कहोगे सर I द teach. मीनिंग, है ना, द यू विल से सर द मीनिंग ऑफ आई टीच इंग्लिश इज दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल से कि सर देयर इज वन टाइम वर्ड हिडन, आप बोलोगे सर वन टाइम वर्ड वन हेल्पिंग वर्ब इज हिडन बिकॉज विदाउट टाइम वर्ड वी कैन नॉट मेक द सेंटेंस, so do is hidden, and that the time word which is hidden is telling me about part of life, that this work, you do this work, it is in your life, that's a meaning of it. लेकिन आप कहते हो कि सर मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ सर, इसके अलावा मैं कुछ बता ही नहीं सकता। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द रूल डू एंड डस, बहुत जरूरी, डू डस बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। पहला रूल हमने यही उठाया क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पे कमांड चाहिए। और डस में तो और भी ज्यादा गलती होती है, डू तो फिर थोड़ा सिंपल ही है, 10 में तो और भी ज्यादा गलती होगी, और भी ज्यादा गलती होगी। कहाँ एस लगना है, कहाँ ई एस लगना है, कहाँ टीच बोलना है, कहाँ टीचिस बोलना है, कहाँ वॉच बोलना है, कहाँ वॉचिस बोलना है, उसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो पार्ट ऑफ लाइफ रूल, मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा, है ना। पार्ट ऑफ लाइफ रूल, आपको आपको अगर बताना है कि कोई भी काम आपकी जिंदगी में है, आप आई डू एक्शन की फर्स्ट फॉर्म बताइए या फिर आई एक्शन, है ना। बोथ हैव गॉट सेम मीनिंग, दोनों का सेम मीनिंग है, काम आपकी जिंदगी में है। बोथ हैव गॉट सेम मीनिंग, काम आपकी जिंदगी में है। नाउ अब मैं कुछ एक्शंस नीचे लिखूंगा, है ना, अभी इसी वक्त, जैसा मैंने कहा कि नोटबुक में आपको अभी इसी वक्त टास्क करना है, क्योंकि कब करोगे उसका भरोसा नहीं है। आपको एक लॉन्ग फॉर्मेट में और शॉर्ट फॉर्मेट में सेंटेंसेस को लिखना है ना। अगर आपकी जिंदगी में है सो आई डू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, और आपकी जिंदगी में नहीं है सो आई डोंट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, बस। जैसे देखो भाई, इंग्लिश पढ़ाना मेरी जिंदगी में है तो मैं कहूंगा आई डू टीच, और इसी को मैं कह दूंगा आई टीच। तो मैं दो तरीके से आंसर दूंगा, अपन प्रैक्टिस दोनों से करेंगे। आपका जो मन हो वो बोलना, शॉर्ट फॉर्मेट ही बोलना, पता दोनों रखना, ओके। मैं नीचे 10 एक्शंस लिखूंगा, आई विल राइट 10 एक्शंस, और आपको हर एक एक्शन का, अगर आप वो काम करते हैं आपकी जिंदगी में है तो लॉन्ग फॉर्मेट और शॉर्ट फॉर्मेट में लिख लेना, 10 सेंटेंस का आंसर लिख देना, और उसे ग्रुप में शेयर करना है आफ्टर द क्लास, ओके। तो मैं लिख रहा हूं, आप नोटबुक में लिखना स्टार्ट करो। तो पहला एक्शन है आपका डू द हेयर। डू द हेयर मीन्स होता है बालों को बनाना, इसे अपन बाल बनाते हैं ना, इसे कहते हैं डू द हेयर। चलिए, ये है एक्शन। लॉन्ग फॉर्मेट शॉर्ट, अगर आप काम करते हैं जिंदगी में है लॉन्ग फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट नहीं करते तो आप बस नेगेटिव वन आंसर। और है एक्शन आपका बंक ऑफ द क्लास, ओके, बंक ऑफ द क्लास। देन आपका एक्शन है शॉफ, शॉफ करना, है ना। काम आपकी जिंदगी में है या नहीं आप बता देना। और काम जिंदगी में है या नहीं इसका ये मतलब नहीं कि आप डेली करते हैं, मैं डेली की बात नहीं है, डू एंड डस डेली की बात नहीं करता, बस आपकी जिंदगी में है, बस इतना पता चलेगा मुझे, Sir, बाकी हम। please repeat again. हाँ, देखिए, जैसे एक्शन, जैसे अगर कोई काम आपकी जिंदगी में शामिल है, आप उन काम करते हैं, तो आपके पास मेथड है, आप या तो लॉन्ग फॉर्मेट से कहेंगे आई डू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, जो कि लॉन्ग फॉर्मेट है जिसमें डूअर है, टाइमर है, एक्शन है, ओके। या तो आप इसी को शॉर्ट फॉर्मेट में कहेंगे आई एक्शन, है ना, टाइम वर्ड को हटा देंगे, क्यों? क्योंकि इंग्लिश में डू एक ऐसा टाइम वर्ड है जिसे पॉजिटिव आंसर में से हटाया जा सकता है। तो आप चाहें सो आई डू एक्शन की फर्स्ट फॉर्म बोले, या चाहे तो आई एक्शन की फर्स्ट फॉर्म बोले, लेकिन रिमेंबर, अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट भी यूज करते हैं तो भूलना मत कि वहां एक टाइम वर्ड छुपा हुआ है, क्योंकि टाइम वर्ड तो चाहिए, टाइम वर्ड तो होता ही है। और अब मैं कुछ एक्शंस लिख रहा हूं, तो आपको उन एक्शन, अगर आप वो काम करते हैं जैसे डू द हेयर, अगर आपकी जिंदगी में बालों को बनाना शामिल है, आप अपने बालों को बनाती हैं, आपकी जिंदगी में है, तो आप उसको लिखेंगे। एक तो लॉन्ग फॉर्मेट में लिखना है आई डू एक्शन फर्स्ट फॉर्म के फॉर्मेट में, ये जो ऊपर मैंने मेंशन किया है, और एक शॉर्ट फॉर्मेट में लिखना है आई एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, और अगर नहीं करते तो आई डोंट एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, ओके मैम। तो एक्शन है शॉफ एंड pass the time, 10 actions I will give you.
and mm, throw garbage on roads and do the dishes. Do the dishes means बर्तन साफ करना and clean the room and talk to friends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, two more. And mm, mm, right. Make the notes. Make the notes. And one more action. Read the books. ये हो गया आपके एक्शन. चलिए राइट इट डाउन एंड देन लेट मी नो इफ यू हैव रिटन एंड नोबडी विल स्पीक. हम देखेंगे आंसर दो फॉर्मेट में चाहिए, लॉन्ग फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट, है ना. आंसर चाहिए लॉन्ग फॉर्मेट और शॉर्ट फॉर्मेट में, क्योंकि भाई दो फॉर्मेट है हमारे पास. और अगर नहीं करते तो एक ही फॉर्मेट है. अगर आप काम जिंदगी में नहीं है तो बस आई डोंट, और अगर है सो अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी क्लियर्ड, है ना. नाउ रीडिंग सेशंस होंगे, मैं रीडिंग के कुछ कुछ शीट्स शेयर करूंगा जिसमें आपको रीडिंग करना होगा, तो आपको और भी चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेंगी. टेस्ट होंगे डेली बेसिस पे, कुछ ना कुछ टेस्ट होंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे एक्यूरेसी के लिए, है ना, सही सही बोलने के लिए, और बाकी आप फ्लुएंसी के लिए हम लोग कन्वर्स करेंगे. राइट इट डाउन एंड लेट मी नो इफ यू हैव रिटन. जस्ट लेट मी नो. My laptop battery is about to die. Everybody has gone. Everybody. Done, sir. Everybody has gone. Done, sir. Done, sir. None, guys. I Everybody am is done.
Yes, I have done. Done, sir. Done. Everybody? Yes, sir. वेट सर 1 मिनट. ओके ओके ओके. आज कॉन्वर्सेशन है, आज थोड़ा सा कैजुअल सा कॉन्वर्सेशन करेंगे हम. तो जिम जाना है यार मेरे को. मेक बॉडी. सूरज सर समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. पक्का? ठीक है, अच्छा है भाई. प्लीज है ना, देखो स्टार्टिंग के जो क्लासेस होंगे प्लीज डेली लेना, क्योंकि रूल्स को मैं थोड़ा अपने तरीके से थोड़ा कन्वर्स कराना चाहता हूँ. और रूल्स हमें एक ही बार कन्वर्स करना है, लेकिन अब हम सिर्फ एक तरीके से सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, अब रीडिंग करना है. मैं रीडिंग के शीट्स शेयर करूंगा, आपको रीड करना है. मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसा बोल रहे हैं, कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं. थोड़ा है ना, कम्युनिकेशन हर तरीके से सही होनी चाहिए. तो कुछ टेस्ट होंगे जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप की कुछ करना होगा आपको, और अलग है ना. तो रूल्स की कुछ स्टार्टिंग क्लासेस आप मिस मत करना, एंड कोशिश करना कि लाइव ही लें. देखो जब लाइव आप लेते हैं ना, साथ में क्लास लेते हैं, तो आप ज़्यादा पढ़ पाते हैं. रिकॉर्डिंग देखने का मन नहीं करता है. Yes, sir. एवरीबडी इज डन. एवरीबडी इज Yes, डन. sir. Yes, Yeah, I'm sir. done. Yes, sir. डन. ओके. दैट्स द थिंग. ये था आज का. कल अपन थोड़ा कन्वर्स करेंगे. आई विल शेयर द शीट. नाउ देट्स अ conversation, very basic conversations there. We have not given you any question to prepare, but in upcoming classes you will get the question. Shubham sir is there, and he'll ask you some questions. Okay, he'll also give the introduction and he'll ask you some questions. Shubham sir, you can open the camera so that people can see your beautiful face. He is very beautiful man. It's very, see. He's very beautiful. Okay. So now Subham sir will ask you some questions, and the questions will be totally random questions. In upcoming classes, we'll give you the time, give you time to prepare some questions. But right now, simple, because first time it will be the conversation session. He'll ask you question, you guys need to answer it. You can also ask him question, and just there is no heavy task. Just enjoy the talk. I will ask Subham sir. I first of all I want to know the feedback about you guys. So after the conversation, I will ask Subham sir that how many of you are giving the answer in a good way and what mistakes you are making. Subham sir, after the conversation, we'll have a talk, or tomorrow I may come to meet you, and you need to tell me. You need to write down the performance. You need to tell me what, with every name you need to tell me that how accurate they are speaking, that you need to tell me that who is making grammatical mistake, who is facing the difficulty in fluency. Everything you need to give me the feedback about all of the people who are there, and you will tell me. Okay, Shubham sir? Okay, sir. Okay. And wait, मैं सबको पिन कर देता हूँ so that everybody will be on the screen. I hope okay. One second. One second. One second. Okay, one. ठीक है, ये maximum. Okay. So Shubham sir, now I'm making you the host, and Okay, sir. चलिए कल मिलते हैं guys. Good night. And जो टास्क लिखा है उसे शेयर कर दीजिए, मैं चेक करके बताता हूँ. Good night, sir. Thank you very much for coming.